Good evening, ladies and gentlemen. It's been 24 hours since prominent seer from Prayagraj, Mahant Narendra Giri, was found dead inside his mutt. And even as the police were swift to act and arrest all those towards whom the needle of suspicion was pointed, all those who were named in the suicide note, the alleged suicide note, there are more questions than answers tonight. There is a 15-page suicide note that I hold in my hand that is being investigated by the Uttar Pradesh police and a special investigation team that has been set up by Chief Minister Yogi Adityanath. If you're wondering that this letter would provide some answers, you're really mistaken. It is suicide note and let's take a look at this. In this suicide note, it has been stated, if you look at this right here, the date 13/9/2021 was mentioned. It's been stricken off, and 20 September 21 has been mentioned, the day yesterday when his dead body was found within minutes of the police receiving a phone call from the mutt. And he says in this letter that he had been contemplating suicide for a while now, made an attempt on the 13th of September, but did not have the energy or the gall or the himmat, he says, or the strength to do so. That is the first point in this suicide note, but people are asking the question that can this be taken at face value? In this suicide note, he also says that Anand Giri, Adya Tiwari and his son Sandeep Tiwari are responsible for my death. 3 people named in this. These 3 people have been arrested, but people who are asking questions say if those named in the letter are arrested, can Yogi government be blamed for lethargy or laxity in this case? Also, the blackmail proof is there in this letter. He says, I'm being mentally disturbed since I came to know about a fake and baseless allegations by Anand Giri. He speaks here of a possible computer-generated video which would be made viral with a woman in a compromising position. Was this a real, a fake video that was being mentioned to him? And he says he gets this information from Haridwar, where his disciple with whom he's had public dissonance, Anand Giri, who was on the News Hour yesterday, was making this video, and he said that he would rather die than face the shame till the time that he could explain the truth to the public. And many people are raising questions about the veracity of this. Did Mahant confide in any politically linked person about his fears of defamation, of blackmail that he was going through? That's the question. Did insiders not know? Also, this is not linked to my home. I have given away every penny to the mutt. You know, all the property deals and the controversies that were spoken about, he says this has nothing to do with that. He says, does this raise suspicion over the mutt's financial dealings? That's a question many in the public are today asking. Also, the suicide note says that the 3 people that he named, including Anand Giri, tried to murder him. Were there earlier complaints? Was the mutt aware of this threat? He's named his successor, Balbir Giri. Did he have anything, any knowledge of all of this? Many questions that still remain unanswered. Let's just listen in to what the ADG of Uttar Pradesh had to say earlier today. ये सूचना मिली थी कि महंत नरेंद्र गिरी साहब ने आत्महत्या कर ली है। वहाँ एक सुसाइड नोट मिला था, उसके आधार पर उनके जो एक शिष्य हैं आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों पे उन्होंने सुसाइड नोट में ये आरोप लगाए थे। आनंद गिरी को हरिद्वार में उत्तरांचल पुलिस से समन्वय बनाकर उनको डिटेन किया गया था। आज उनको लेके टीम प्रयागराज पहुंच रही है। उसमें एक स्थानीय स्तर पे वहाँ के एसएसपी ने कुछ दक्ष लोगों की एक एसआईटी बनाई है जो कि सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसी के लिए एक अलग से एसआईटी
बनाई गई है जो सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। Breaking news coming in right on top of the news. Our information that we are getting is that there is a videography that is available of this entire suicide. That's the information that top sources are giving us. What we're being told that the police has recovered a phone from the room where Mahant Narendra Giri's dead body was first recovered from. Let me go across to my colleague Madhav Das Gopalakrishnan joining me, senior editor. Madhav, we understand that the police has recovered a phone which contains a videography of the entire suicide, alleged suicide, because many people are not believing the suicide theory. Do you have any information on where this video that has been recovered from the phone at the site is? What information is contained in that? Was that kept by Mahant himself? Was he videographing his own suicide? Was it put by somebody else in the mud? Any clues that we have from the police? Well, this is a very, very important part of this entire investigation, Navika, because, video proof taking place during a suicide or even if it's just before it, either ways is very, very important piece of evidence. And that phone, which is now in the custody of the SIT, was recovered from the room of the Mahant. So very, very important. And this perhaps could be the clinching piece of evidence as far as what has really transpired, who is really responsible for this. And of course, if he's, for instance, saying anything during the course of that videography, that too would be very, very important evidence, along with the suicide note, which he has made very serious allegations against his, not just his own disciples, but 3 individuals who have totally been named as far as that note is concerned. So very, very important piece of evidence, Navika. We were also told that there is another video that was referred to in that suicide note. That too would be a very crucial part of the entire investigation. And we have been speaking to police sources. The entire team of reporters from the national capital to the location in Prayagraj to Lucknow have been in touch with the police top brass at every turn of the investigation. They have told us that these videos are going to be very crucial part of the evidence in the case that they are building and the investigation that is currently underway by the SIT. Navika. Well, thank you, Madhav, for that information. So there is a video that is available. That's the information coming in right on top of the news. Our video of the suicide, before, after, we don't know, but we are being told that this will only be presented in courts. Well, we're trying to gather more information on what is contained in this video, and that really is the question, that if there is a video of the entire suicide, then will it end the questions? Let's listen in to what Chief Minister Yogi Adityanath had to say earlier today about the investigation and about this suspicious death of Mahant Narendra Giri. एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। Despite the assurance by the Chief Minister that all the miscreants will be brought to book, of course, the opposition was not convinced. Take a listen. उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, सच्चाई जो है वो जांच में सामने आ सकती है, लेकिन एक महंत शासक है और महंत के राज्य में महंत सुरक्षित नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब महाराष्ट्र के पालघर डहाणू में 2 साधुओं की हत्या हुई, लोगों ने भीड़ ने की, वो भी बहुत दर्दनाक हादसा था। तब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल पूछा गया। आज हमारे नरेंद्र गिरी जी की दर्दनाक रहस्य मौत के बाद भी यही सवाल महाराष्ट्र पूछेगा, पूरा उत्तर प्रदेश पूछेगा और दिल्ली तक ये सवाल पूछते रहेंगे। सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। This suicide note is only deepening the mystery further, because now the lens is on 4 key issues: the accusation of misappropriation of funds,
Issue number 1. Issue number 2, possible blackmail attempt against the Mahant. Issue number 3, digital evidence of alleged misdemeanor. And 4, question on overall functioning of the Mahant. But while all these angles are being investigated, the opposition, which is blaming the government and demanding a High Court judge instituted inquiry, is raising questions also of a CBI investigation. But the legitimate question on the news hour tonight is just this. Is there enough evidence, and is this opportunism by the opposition in Uttar Pradesh because they seem to have found a political issue ahead of elections? That's the question and the debate. Seer suicide politics, that's the hashtag and the debate coming up. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining me on the debate tonight, Shailesh Pandey, Shiv Sena supporter, Sudhindra Bhadoria, leader of BSP, Vivek Sailer, spokesperson of the Samajwadi Party, Swami Vivek Virat, spiritual guru. Also with us this evening, Dr. Anand Ranganathan, author. But my first question goes to Shalabh Mani Tripathi, media advisor to Uttar Pradesh Chief Minister. Shalabh Mani Tripathi जी, सवाल एक ही है, वीडियोग्राफी की बात आ रही है और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ये संदिग्ध जो मृत्यु हुई है महंत नरेंद्र गिरी जी की, इस पर कई सवाल हैं। सुसाइड नोट, आनंद गिरी जी कहते हैं कि वो तो लिख ही नहीं सकते थे, तो 15 पेज का सुसाइड नोट कहां से आया? और अगर ब्लैकमेल हो रहा था आनंद गिरी द्वारा, तो क्या मठ के अंदर वालों को इसका पता नहीं था? सुसाइड नोट में यह भी कहा गया है कि उन्हें पहले भी मारने की कोशिश हुई, तो क्या इसकी कोई कंप्लेंट आई थी पुलिस के पास या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास? क्योंकि आना जाना था, बहुत से राजनीतिक नेताओं का वहां आना जाना था, आपकी पार्टी, आपकी सरकार से भी। सवाल कई सारे हैं, जवाब नहीं है। आप इस वक्त ऑपोजिशन की सीबीआई डिमांड, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड पर क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ही दुखद क्षण है हम सबके लिए, सभी सनातनियों के लिए, हिंदुत्व को मानने वालों के लिए, संत परंपरा को मानने वालों के लिए निश्चित तौर पे आज बहुत ही दुखद क्षण है। और सिर्फ सरकार का होने के नाते नहीं, एक व्यक्तिगत जुड़ाव जो रहा है पूज्य महंत जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, हम सब का भी, जो भी सनातनी हैं, जो भी जिन्होंने एक सफलतम कुंभ देखा है, उनके मार्गदर्शन में जो कुंभ का आयोजन हुआ जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, उसमें पूज्य महंत जी का बहुत बड़ा योगदान था। और जब भी कहीं ऐसी आवश्यकता आती थी, मार्गदर्शक के तौर पे, अभिभावक के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे विचार विमर्श करते थे। तो एक सरकार में होने के नाते तो दायित्व है ही, एक निजी क्षति जो हुई है, एक व्यक्तिगत क्षति जो हुई है, व्यक्तिगत नुकसान जो हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती आने वाले वर्षों में, उसके नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी सवालों का जवाब तलाशें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व स्वयं में संत के हाथों में है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे जितने पूज्य संत हैं उनको इस बात का भरोसा है, हम सबको भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारे सवाल हैं, जो लेटर मिला है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। एक प्रक्रिया होती है, इस तरह के लेटर मिलते हैं, उनकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनकी जांच करते हैं, कौन सा वीडियो, कौन सा मोबाइल, कौन सा फोन, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। उसको लेकिन आप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हैं, एडवाइजर हैं उनके, तो आपसे पहला सवाल यही है कि क्या वीडियोग्राफी जो खबर आ रही है, वीडियोग्राफी का कोई सबूत, कोई सुराग वहां है? एक नंबर की बात। और दूसरा, आप कह रहे हैं नजदीकी तौर पे आप जानते थे उन्हें, उनके साथ रहे हैं और कुंभ में आपने काम किया है उनके साथ, तो क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इतना लिख ही नहीं सकते थे, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो वीडियो की बात आपने पूछी, क्योंकि ये पूरा प्रकरण बहुत ही अति संवेदनशील है, जांच चल रही है, बहुत सारे अहम सुराग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया। आज आपने देखा होगा, सारे कार्यक्रम छोड़ के वो सुबह पहुंचे, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर एक जो वचन था, जो प्रण था, वह भी लिया कि इस पूरी घटना की गहराई से जांच होगी। तो कोई ऐसा तथ्य मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा जो कि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करे। हाँ, ये जरूर है कि पत्र मिला है, उस पत्र को लेकर दो तरह के मत हैं। एक मत आप जो कह रही है कि वो इतना लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनके निकट रहने वाले जो रोज उनके साथ जो काम करते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, वह लिखते थे और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखकर पहले भी कही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जांच चल रही है,
दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, उनके किसी बयान के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वही सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले, 8 महीने पहले उनका भी एक वीडियो आया था। पूज्य महंत जी उनसे नाराज थे, उनसे वार्तालाप बंद कर दिया था, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी और बाद में उन्होंने चरणों में आकर माफी मांगी थी। ये वीडियो मीडिया को भी मिला था, सभी को मिला था, सार्वजनिक हुआ था। तो एक आपस में एक दुराव की स्थिति थी, ऐसा सभी ने देखा है। आज उनको जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में उनको आरोपी बनाया गया है, उनको दोषी बनाया गया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सरकार पूरी तौर पर प्रतिबद्ध है। आप देखिए, जैसे ही घटना हुई है, अब तक करीब 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और बहुत सारे अहम सुराग मिले हैं। हम तह तक जाएंगे इस पूरी घटना में क्या कौन सी परतें छुपी हैं, वो सब जनता के सामने आएगी, हम सबके सामने आएगी। जो भी अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, सबके सामने आएगी। और मैंने फिर कहा कि सरकार में होने के नाते ही नहीं, एक व्यक्तिगत क्षति जो हुई है एक हिंदुत्व की, सनातनियों की, उसके नाते भी हम सबके दायित्व है कि हम इसको, इस घटना की तह तक जाएं। और निश्चित तौर पर सवाल जो आपके जहन में है, वो सवाल हमारे जहन में भी है, इस पैनल में बैठे बहुत सारे लोगों के जहन में, उसकी तह तक जाएंगे। ये सारा सच जी शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त पैनल पे कई हाथ ऊपर जा रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी ने सबसे पहले हाथ उठाया और उसके बाद शैलेश पांडे जी ने। तो आनंद रंगनाथन जी, आई इनवाइट यू, you've raised your hand. Are you convinced about this suicide theory, or are you looking at foul play in this entire incident? Good evening, Navika. First of all, my sincere condolences to the bereaved. It is a real tragedy, and by the looks of it, with the new evidence coming, it is an unfolding tragedy. It really is. And my heart goes out to the near and dear ones of Swami. There are two issues here. Number one is the case itself. And with the explosive evidence that you've just broken while we were on air, if there is a video evidence of the suicide note, i.e. if Mahant ji has actually read out and there is a videography of that, then that kind of seals the case, of course, pending investigation. But I have to say this, that for those who are demanding a CBI inquiry, not even a day has passed. It is a rapidly unfolding sequence of events. Not only that, it is a rapidly, evidence gathering is also going on. So as you just broke, I mean, there is new evidence that has come to light. Now, to ask for the opposition to ask for a CBI inquiry without even giving the UP police a chance, or the UP government and the police administration a chance to collect all the evidence. And then if they kind of do some hanky-panky with the evidence, then at least you can say that, look, we are not satisfied, we demand an inquiry. I think it's a bit too much. So I think you should wait for at least, those people demanding CBI inquiry should wait for at least 3 or 4 days till, at least some great amount of evidence is collected and shown. Point number 2, but this is also very important. I think आपके माध्यम से मैं हिंदी में त्रिपाठी जी से पूछना चाहूंगा कि आजकल पुलिस फोर्सेस स्टेट की उसमें ट्रस्ट इतना कम है कि लोग इमीडिएटली कुछ भी हादसा होता है, लोग सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं। तो मैं त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, नाविका जी, कि अगर ये हादसा, बहुत ही दुखद हादसा, महाराष्ट्र में हुआ होता, तो क्या यही बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी नहीं मांगती 24 घंटे में? हाँ या ना? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा सवाल रखा है जो मुझे लगता है कि कोई भी मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति इस सवाल का, मैं तो सवाल की कल्पना कर रहा होगा। अभी पूज्य महंत जी को गए अभी 24 घंटे का वक्त बीता है और अभी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, और आप महाराष्ट्र से तुलना कर रहे हैं जहां पर पालघर में सबके सामने पुलिस की अभिरक्षा में संतों को पीट पीट कर मार दिया गया, किस तरह उनको बुरी तरह मारा गया। अब आप उस घटना को लेकर अगर जोड़ना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, इस तरह की राजनीति का वक्त नहीं है। एक घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक कैंपस के अंदर हुई है। सॉरी, मैंने आपसे एक, मेरा जो प्रश्न था त्रिपाठी जी, मेरा जो प्रश्न था वो सिर्फ वो पॉलिटिकल था, मैं आपको नहीं, क्योंकि आप मेरे सवाल को गलत ले रहे हैं। आप मेरा सवाल, आपने जितना पालघर पे आउटरीच किया उससे 10 गुना ज्यादा मैंने किया। आप एक मिनट सुनिए, मेरा प्रश्न एकदम सिंपल। अरे बोलिए।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार करिए। हमारी पुलिस बहुत तन्मयता के साथ काम कर रही है। पुलिस के जो दक्ष अफसर हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको लगाया गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सीबीआई जांच की आवश्यकता है, सिटिंग जज की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग, कोई कह रहा है कि न्यायपालिका से जांच कराइए, कोई कह रहा है सीबीआई से कराइए, लेकिन एक बार जो पूज्य संत जी के आसपास रहने वाले लोग थे उनकी बात भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के और देश भर के संतों को भरोसा है उत्तर प्रदेश पुलिस पे और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई दिखनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैं पहला सवाल पूछूंगी विवेक साइलस से। आनंद रंगनाथन जी, आती हूँ आपके पास। विवेक साइलस और सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ। मैं विवेक साइलस जी से पूछूंगी, आज तक तो सीबीआई पे किसी को भरोसा ही नहीं था, आज सीबीआई की मांग हो रही है। आज तक तो आप कहते थे कि सीबीआई सरकार की पिट्ठू है, आज आपको सीबीआई चाहिए, यूपी पुलिस नहीं चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आप 24 घंटे में एक सीबीआई या हाईकोर्ट जज के नीचे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते क्या? 24 घंटे नहीं हुए और इस तरह का जो आ रही है सबके वक्तव्य, are they trying to fuel fires in Uttar Pradesh because there is an election around the corner? Yes, first we pay our respects and condolences for Mahant Narendra Giri ji. May his soul rest in eternal peace. Actually, ma'am, as far as CBI inquiry you said, we also demanded a CBI inquiry in the Hathras case as well. When the same Shalabh Mani Tripathi was saying it is a fake news, and when the same ADG Law and Order that came to your show right now and gave a statement was saying it is all fake, nothing has been done. And when CBI inquiry was conducted, everything was clear. Anyway, ma'am, a proper inquiry should be done at the priority basis. That is what we want, under the supervision of a sitting Supreme Court judge. As to who were the people who were behind this, I just need to remind the viewers, in July 2019, Wangambadi Peeth Niranjani Akhada, Ashish Giri ji's body was found in a dilapidated state, and all saints asked for a CBI inquiry at that time as well, and the UP government didn't pay any heed to it. Deepak Giri Maharaj ji repeatedly asked the government that he has been threatened of life on his mobile. The Uttar Pradesh government didn't pay any heed. I want to ask a very relevant question, Navika ji. Ramji Tripathi said during the Ganga Andolan, when Narendra Giri ji was asked to read a letter, he said he cannot read or write. First of all, his closest disciple, Ashish Shukla, also said that he could not read or write. Even Jitendra Saraswati, one of his closest disciples, said that Maharaj ji could not read or write. It is a matter of investigation that how come if a person who could not read or write could write a suicide note of 15 pages, as you just now said. Mr. Shalabh Mani Tripathi ji, respond to that question. ये क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो कह रहे थे हाथरस में कुछ हुआ ही नहीं। भाई सवाल आपने पूछा है तो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है वही जवाब देंगे। मैं तो दे नहीं सकती और आपके जवाब से आप स्वयं खुश नहीं होंगे तो आपको सुनना तो सरकार को ही पड़ेगा। इलेक्शन इसीलिए हुआ करते हैं, तो सुन लीजिए ना, इत्मीनान से सुन लीजिए। शलभ मनी, जो तथाकथित प्रबुद्ध होते हैं वो सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी चाहते हैं कि वही दे रहे हैं, तो वो जवाब भी दे रहे थे। देखिए, ये झूठ फैलाने वाले लोग कितनी तेजी से झूठ फैलाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय आया होता जिसमें सीबीआई जांच की मांग हो रही होती और नविका कुमार को पता नहीं चलता, आपकी टीम वहां नहीं पहुंचती? या पूज्य महंत जी जिन्होंने 24 घंटे पहले शरीर छोड़ा है, वो तो अभिभावक की भूमिका में थे, तो किस तरह एक झूठा प्रोपेगेंडाइज करने का काम ये करते हैं। और हाथरस में इनकी क्या भूमिका थी पीएफआई के अपने इनके रिश्तेदारों के साथ, वो पूरा देश देख चुका है। तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं आज सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए, ये पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन लिखना जानता था? अभी आप कह रहे हो कि 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं लिखना जानते थे। अभी मैं एक चैनल पर बैठा था, वहां बाइट चल रही थी उनके साथ रहने वाले उनके शिष्य की, वो नहीं लिखना जानते थे। हमने खुद उनसे कई बार उनसे लिखवा के चीजें ली हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन कमरे में बैठकर होगा क्या? आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके लिए अलग से लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो संविधान के दायरे में कार्य करते हैं। सालों इस बात के लिए उनको एक्सपर्ट किया जाता है कि वो ट्रेनिंग करें और जाके इन्वेस्टिगेशन करें। आप बैठ के यहाँ स्टूडियो में बैठ के अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके आश्रम के भीतर उनके कक्ष में हुई है। इस घटना को लेकर सरकार गंभीर है, हम पूरी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पालघर में जहां पर पुलिस सिक्योरिटी में संतों को मारा गया, वहां पर आप जैसे लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है
जरा सर उठा के पूछिएगा अपने मन से, तब ये बात समझ में आएगी। ये राजनीति मत करिए, ये हमारी आज पालघर की बात नहीं हो रही थी, जहाँ की बात हो रही है वहाँ की बात करिए। तो घृणा फैलाने से मैं आपको देता हूं हमारी क्षति है। आप कब से हिंदुत्व को मानने लगे? मौका आने दीजिए, मैं फेक न्यूज है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वही मुख्यमंत्री के साथ जो कह रहे थे आक्रोश जो है फेक न्यूज है, सुरक्षा के घेरे में मरवाने वाले पूज्य संतों का भरोसा है, पूज्य संतों का विश्वास हमारी सरकार पे है, हम काम कर रहे हैं। बाकी आप जैसे लोगों के से हमें हमारी संतुष्टि, आपकी संतुष्टि में जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कुछ भी कर देंगे। आप जैसे लोग पालघर के साथ खड़े होंगे और यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे PFI के रिश्तेदार बनके, तो हमें आपकी किसी भी कमेटी पार्टी जी आज पालघर की बात नहीं हो रही है, हम पर विश्वास है, हमारे पूज्य संत हम पर भरोसा। पालघर की आपने बिल्कुल सही कहा विवेक साइलस जी, पालघर की बात इस वक्त नहीं हो रही, वो तो हुई नहीं ना, क्योंकि आपने छेड़ी नहीं। वहां संत मर जाएं आपको तकलीफ नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में मर जाएं तो आपको सियासत का मौका मिल जाता है। इशू तो यही है, लेकिन मैं सुधींद्र भदौरिया जी, संतों का मर्डर हो चुका उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है। 30 झूठ आपका चलने वाला नहीं है, झूठ नहीं है, चलने वाला नहीं है। पालघर में आप लोग झूठ ये रिकॉर्ड में है। से पहले पालघर जाइए, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में संत मार दी, संतों की हत्या त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में हो गया है। आपके मुंह में संतों की हत्या में क्या बोलेंगे? जिसका इलाज हो रहा है, तुष्टिकरण की नीति के लिए आप यहाँ जब संशोधन कानून पर कार्रवाई होती है, आप यहाँ रोते हुए आते हैं। संतों की आप कब से हिंदुत्व के पैरोकार हो गए? जब से योगी जी की सरकार आई है। आप कब से हिंदुत्व के पैरोकार हो गए? आप हिंदुत्व की खिलाफत करने वाले लोग, आप हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले लोग, आप ये थके हुए नकाब होके आएंगे, आपको कोई बांधने वाला नहीं है। आपके चेहरे का नकाब उतर चुका है। पालघर पे आप लोग करवाने वाले लोग हैं, उस पर आपकी जुबान पर चाले पड़ जाते हैं। कानून व्यवस्था आपका नकाब उतर चुका है। पूरा देश आज देखे काल प्रबुद्ध जीवी है, उनका चेहरा जानता है। क्या आप नीति करते हैं? जनता की सुरक्षा करते हैं, पालघर के संपादन की बात नहीं करते। विवेक साइलस जी, allow me to come in. You know, the issue here is, if you're talking about law and order under Yogi Adityanath ji as Chief Minister and law and order under Akhilesh Yadav ji as Chief Minister, all you have to do is pick up the National Crime Record Bureau's number and take a look at it. And I rest my case, because today I don't wish to pick up those numbers and parade them, because frankly it's neither here nor there. One person dying or one more rape than before is actually a travesty that should not happen. It is something that is just too much, even if it is one murder or one dacoity or one rape. So I want to straight away go to Mr. Sudhindra Bhadoria. Bhadoria ji, I want to ask you very, very respectfully. UP Police has got 28 hours to investigate the unnatural death of Mahant Narendra Giri. Now, in 28 hours, we have demands coming across. From where? From Maharashtra, Shiv Sena, from Congress Party, from the NCP. मतलब ये सब महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, इनके सबसे पहले जो हैं इमोशंस जाग गए हैं, जिन्होंने पालघर पे कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी, बहन मायावती जी, अखिलेश यादव और अब बीजेपी, तीनों रह चुके हैं सरकार में उत्तर प्रदेश की। क्या आप कहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस बहन जी के नीचे काम करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, योगी जी के नीचे काम करती है तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है? ये कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, या हम बस पॉलिटिक्स का ही इंतजार करते हैं और हमें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं? देखिए नाविका जी, आज के दिन जब महंत नरेंद्र नाथ जी की जब इस तरह की हत्या हुई है या उनकी किस प्रकार से मौत हुई है, पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी संवेदनाएं उनके मठ के लोगों के साथ, उनके जो सहयोगियों के साथ, सबके साथ व्यक्त करता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक अवसर नहीं है।
हम इस बात के लिए चिंतित जरूर हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इस पूरे देश के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, उनके मठ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, और शायद उनके फॉलोअर्स बाहर भी हो सकते हैं। पर हम ये ज़रूर कहेंगे जिस प्रकार से ये सब घटनाएं घट रही हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, तो वो तमाम तरह के प्रश्न उठाता है, और बहुत सारे जो तथ्य हैं, we are not privy to all those the facts and all the kind of evidences which are available to the inquiring agencies, which they must be aware of. So therefore I would not like to jump the gun and make my own observations, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस तरह की अगर घटना घटी है तो ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो भी दोषी हैं उनको जरूर सख्ती के साथ उसमें जांच हो, निपटे और उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैं समझता हूं कि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और देश के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इस समय इस अवसर पर ये बड़ा भारी नैतिक कर्तव्य है जो उसे पूरा करना है। लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायालय की हो या सीबीआई की हो, पर ये जरूर है कि तह में जाने की आवश्यकता है और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसा उदाहरण बनना चाहिए। इससे तो भदौरिया जी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री कहीं भी दूर नहीं हट रही, पीछे नहीं हट रही। जांच होगी और जरूर होगी और एसआईटी का गठन तो हो चुका है। लेकिन शैलेंद्र पांडे जी, मुझे ये बताइए कि शैलेंद्र पांडे जी, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, मैं तो केवल ये कह चाहता हूं कि देखिए न्याय नहीं, न्याय को ध्यान में रखते हुए कहीं अन्याय न होने पाए उन लोगों के आस्था रखने वालों के साथ, इसलिए ये ध्यान में रखकर पूरी गहराई से तह में जाने की आवश्यकता है। शलभ त्रिपाठी जी, सुधींद्र भदौरिया जी को आप आश्वासन दे सकते हैं कि अन्याय नहीं होगा इस पूरे घटनाक्रम में और आप सच्चाई की तह तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे? नहीं, सुधींद्र जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, घटना हुए 24 घंटे हुए हैं। जो प्रथम दृष्टया जो एफआईआर आई, जो एप्लीकेशन आई, जो तथ्य सामने आया, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन को नहीं जानता, मैं इसमें कहूंगा कि हम लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं है। हमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारे सवाल एक कॉमन मैन की तरह हमारे दिमाग में भी हैं। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो एजेंसीज हैं वो उन सवालों का जवाब तलाशे। लेकिन मैं इस बात के लिए सभी को यहाँ जो बैठे हैं इन सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता को जानते हैं, उनकी निष्ठा को जानते हैं, और क्योंकि एक सरकारी दायित्व के साथ साथ एक उनका व्यक्तिगत जुड़ाव भी रहा है, ये हम सबकी सनातनी की एक क्षति हुई है, तो हम इसकी तह तक जाएंगे। गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई हैं। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ जो गिरफ्तार हुए हैं वही चार्जशीटेड होंगे, उनसे पूछताछ हो रही है, सारे तथ्य निकाले जा रहे हैं, उनसे उनकी जरूरत पड़ेगा तो नार्को टेस्ट भी होगा, जहां भी होगा। और जहां तक एजेंसीज की बात है, आपको लगता है कि नहीं, अगर यूपी पुलिस नहीं कर पाएगी तो हम किसी भी स्तर पर किसी भी जांच एजेंसी तक जाने को तैयार है इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए। लेकिन घटना की तह तक जाएंगे, जो दोषी हैं उनको दंड भुगतना पड़ेगा, ये तय है। शैलेंद्र पांडे जी, इससे ज्यादा आश्वासन तो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। इतना आश्वासन तो पालघर के साधुओं के लिए आपकी सरकार ने नहीं दिया था। लेकिन अब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, सबको आज सनातन धर्म की बड़ी याद आ रही है और बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सीबीआई पे भी बहुत आपको ट्रस्ट और फेथ वापस आ गया है। ये क्या हुआ? कट हो गया है। मेरे ख्याल से कनेक्शन हमारा कट गया है। मैं आचार्य विराट जी से पूछूंगी। विराट जी, इससे ज्यादा आश्वासन तो सरकार दे नहीं सकती, तो क्या सवाल उठाना और पहले सवाल उठाना और इन्वेस्टिगेशन तहकीकात का वेट ना करना, क्या ये सही है? देखिए, जितना आश्वासन दिया गया है इसका तो हमें पूर्ण विश्वास पहले से ही है, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने में स्वयं संत हैं और एक बहुत बड़े गोरख मठ के महंत भी हैं।
तो विश्वास हमें पूरे संत समाज को है। और रही बात, जो बात उठा रहे हैं उनको भी पूर्ण अधिकार है, परंतु मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीति की बू आती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव यूपी में आने वाला है। किस तरह से यूपी के चुनाव में एक संत को, एक मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए, कहीं ये वो साजिश तो नहीं है? तो कहीं ना कहीं मुझे ये सब अभी आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे साथ डिबेट में हैं, वो जो बोल रहे हैं, उनसे मुझे कहीं ना कहीं ये शंका लगती है। तो एक संत को बदनाम करने का या एक पार्टी को बदनाम करने की भी तो कोई साजिश नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं सारे काम छोड़कर उस घटनाक्रम के लिए चले गए। और यहां बैठे हुए प्रवक्ता या जो भी बीजेपी की तरफ से बैठे हैं वो पूरा आश्वासन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी पालघर की बात ना करके या कहीं और दूसरी जगह की बात ना करके, जब संतों को पालघर में संतों को लाठी के द्वारा पुलिस के सामने डंडे मार मार कर मार दिया गया, उसकी बात ना करके सिर्फ वो घटना हुई। और वाकई ये बहुत घृणित घटना है। अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो ऐसा क्या मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई? जी बिल्कुल, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन शैलेंद्र पांडे जी, कनेक्शन कट गया था आपसे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सबको सीबीआई की बहुत याद आ रही है। क्यों? पालघर के मामले में तो आपको नहीं आई थी, पालघर के मामले पे तो आज भी आपने सच किसी के साथ साझा नहीं किया, क्यों? देखिए नमिता जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के महंत जी, जो जिनकी ऐसी दर्दनाक हत्या हुई, या उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और यहाँ पर आपके चैनल पे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि राजनीति आखिर में करता कौन है? आज राजनीति की बात कौन कर रहा है? कहाँ किसने किसके खिलाफ कोई प्रश्न उठाया या क्या कह दिया जो आप लोग चैनल पे अभी आकर ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? सही मायने में। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, ये हमारे हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे। कुंभ मेला जिनके नेतृत्व में कुशलता से वहां पर आयोजित किया गया, संयोजन किया गया, आज अगर ऐसे व्यक्ति की ऐसी दर्दनाक घटना हुई है तो इस पर क्या लगता है कि तत्परता से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। इसलिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं, उनके जो उनके नजदीक के लोग हैं वो ये कह रहे हैं। क्योंकि शलभ मनी जी, इनके जहन में जितने आज सवाल आ रहे हैं वो शायद 2 साल पहले नहीं आ रहे थे, 1.5 साल पहले नहीं आ रहे थे, पर आज प्रश्न बहुत है, बवंडर सा है इनके मन में और इनके दिल में। देखिए नमिता जी, मैंने कहा ये प्रश्न बवंडर मेरे मन में नहीं है, ये प्रश्न और बवंडर उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जो भक्त जन हैं, जब महाराष्ट्र में, जब पालघर में हादसा हुआ था तब भी सारे देश के मन में थे, तब भी सारे देश के मन में थे, लेकिन तब जवाब नहीं आया था। अब कम से कम जवाब सुन लीजिए, क्योंकि शलभ मनी त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं आपको, जवाब सुन। देखिए नाविका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए आज की जो घटना हुई है, हम इतना सिर्फ कहना चाहेंगे कि आज की घटना में सरकार भी हम ही है और पीड़ित भी हम ही हैं, क्योंकि हमारे बीच से हमारे जो एक अभिभावक थे उनका एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका जाना हुआ है। निश्चित तौर पर हम इस पूरी घटना को लेकर मर्माहत हैं, लेकिन हमारा संत समाज भी और हमारा पूरा जो हिंदुत्व परिवार है वो इस बात को जानता है कि मुख्यमंत्री जी कितनी मर्माहत मन से इस पूरी घटना की तत्परता से लगे हुए हैं कि इस पूरी घटना का खुलासा हो। हाँ, वो जरूर लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं राजनीति करने का एक अवसर उनको दिख रहा है, उनको पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, जो सनातनी है वह भी देख रहे हैं कि पालघर की घटना में किस तरह संतों को पुलिस की अभिरक्षा में मारा गया।
पुलिस की अभिरक्षा में मॉब लिंचिंग की गई, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं फूटा। आज आप आके उस पर राजनीति कर रहे हैं, एक ऐसी घटना पर राजनीति कर रहे हैं जिसको लेके उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के संत समाज को इस बात का भरोसा है कि इस घटना में पूज्य योगी जी पूरी घटना में कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वह भी एक संत हैं, इसलिए संत समाज को भरोसा है, सनातनियों को भरोसा है, हिंदुत्व को मानने वालों को भरोसा है कि यहाँ पर न्याय होगा। लेकिन काश आपने पालघर की घटना पर भी बोला होता, काश आपने जो और घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस की सरकार में साधु संतों पर जो गोलियां चली, जब कार सेवकों पर गोलियां चली, ladies and gentlemen, it is true that this entire incident that has happened in suspicious circumstances raises more questions than it has answers for. But as I said, 28 hours of investigation is certainly not enough to get to the bottom of this entire mystery. The Uttar Pradesh police, the SIT, the Chief Minister, the government have all assured that if this is not enough, there will be a deeper and a bigger investigation into this entire matter. But before the investigation wheels can start rolling on the ground, is it really right for the opposition to raise questions, to put pressure and to politicize? That's the big question. Is it only because elections are around the corner and this seems like an important issue that could serve as fodder for Uttar Pradesh elections early next year? That's the real question. Why politicize this entire issue is the big question we are asking on Times Now tonight. Thank you very much to all my panelists for joining me on the News Hour.